guys, welcome back to my channel Ivan and Mama. And I hope you guys are doing well, keeping safe, and staying at home because Corona is increasing day by day, alarming rate. So it's better to stay safe, stay home. Although the lockdown has been released, but let's take all the precautionary measures and be safe everyone. So today I want to share some styling tips for all the new mommies out here. Some tips, hacks, do's and don'ts for how to dress up after the maternity period. So stay tuned and let's begin. So before we start with the hacks, do's and don'ts, and the styling tip that I'll be sharing with you, most important thing that I would like to tell you guys that it's basically, it is exactly my assumption, my suggestions, and what I have done. So I'll be sharing my experience or the some tips which would be useful for you. Exactly. So your body is entirely different. So uh, whatever suits you, whatever you like, you should be knowing that better. So let's start. So the pregnancy cycle changes our body drastically, emotionally, physically, hormonally, everything, and getting back into this shape is a bit difficult for all the mamas, and I can understand this because I've experienced the same. Luckily, I have a good metabolism. You can call as a genes or my mom's that I don't weigh a lot. I don't gain weight too much, or even if I gain weight, it doesn't show up in my body. So I am lucky one for that for sure. So if I talk about myself. The entire pregnancy cycle, I gained almost 20 to 25 kg of weight. So when I conceived, I weighed, it was like 55 or something, and the final, the delivery date weight was around 70 kg. So it's almost 20 to 22 kg. And let me tell you something. I'm back at 57 kg. So I lost all my pregnancy weight, 20 kgs in the span of 1 year because now Ivan turned once for almost 1 year. I have shed all the weight. So again, it goes to my metabolism because I don't do diet. I cannot do gymming. Exercise and yoga is something not every day whenever I get time that I do. Otherwise I cannot leave food. मतलब मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मेरे को खाना बहुत पसंद है. जिम एंड ऑल लाइक ओ गॉड मेरे से नहीं हो सकता. सो it totally depends on your metabolism to how your body act with your food. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पानी भी लग जाता है, कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म ऐसे होती है कि वो खाना कम खाते हैं बट उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि दे गेन वेट वेरी फास्ट. तो टोटली डिपेंड ऑन दी मेटाबॉलिज्म. और प्रेगनेंसी में हम इतना घी बटर और इतनी तरह के लड्डू ड्राई फ्रूट इतना कुछ खाते हैं कि डेफिनेटली वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगैन फॉर द बेबी, फॉर growth of the baby, for the nourishment of yours. So it's important. But to shed back, all the weight and coming back into shape is a bit difficult. तो टाइम लेते हैं, इट टेक्स टाइम बट मेरा तो हो गया. सो आई होप आप जो भी मदर परेशान है डोंट वरी, इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन. क्योंकि इन नेक्स्ट 1 to 2 years आपके बच्चे आपको इतना भगाएंगे. जब वो चलना शुरू करते हैं, जब वो क्रॉल करते हैं, तो आपकी एनी वेज वेट कम हो जाता है. मेरे साथ ये भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इवान क्रॉल करता है और वो इतना भागता है पूरे दिन घर में, इधर वो एक जगह नहीं बैठता, तो मेरे को उसके पीछे भागना पड़ता है एनी तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे वेट कम होने का. एंड या सो लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी वेट के लिए. नेक्स्ट, ईटिंग क्लीन. अच्छा खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. और एक्सरसाइज फॉर ऑल द न्यू मॉम स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू कंसल्ट योर गाइनो, कंसल्ट योर डॉक्टर टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज. क्योंकि डॉक्टर्स वैसे भी एडवाइस करते हैं कि फॉर एटलीस्ट 1 or 2 months डोंट डू हैवी एक्सरसाइजेस, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या योगा से स्टार्ट कर सकते
सकते हैं, नॉट टू मच योगा. इनफैक्ट डाइटिंग इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑल दी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एंड मदर्स और लैक्टेशन जिनका चल रहा है, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी को आपके ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है. एंड अगर आप डाइटिंग करोगे, आप नहीं खाओगे, तो डेफिनेटली बेबी को भी प्रॉब्लम होगी. तो बेटर कि डू एवरीथिंग इन अ स्लो पेस. सब कुछ हो जाएगा, सब मैनेज होगा. विदिन अ ईयर यू विल बी बैक इन टू योर शेप. एंड इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आई बिलीव कि मदरहुड इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग. सो आप for around 9 months you carry a life inside you, and that's a blessing for each and everyone who becomes a mother. So हमें उसको भी enjoy करना चाहिए कि हमारी body capable है to carry a life inside us. So enjoy that moment also, and stress नहीं लेना चाहिए for the weight. और क्योंकि मैं ये बात experience के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने after pregnancy when I looked at myself, I was like no way, belly fat है, pregnancy fats है, bulges हो रहे हैं. But it took time, but it went out. धीरे धीरे पेस में सब कुछ चला जाएगा. So stress नहीं लेना है. So first most important thing और tip जो है for styling moms would be wearing confidence. आप जो भी पहनो, wear it with confidence. अगर आप probably गुच्ची, प्राडा और डियोर भी पहन रहे हो, बट कॉन्फिडेंटली नहीं पहन रहे हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है. फिर यू डोंट लुक गुड. आप यू लुक गुड, यू लुक स्मार्ट व्हेन कॉन्फिडेंट इज देयर विद यू. सो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग. आप साड़ी पहन रहे हो, आप सूट पहन रहे हो, आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, स्कर्ट्स पहन रहे हो, ड्रेसेस पहन रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली पहनो, यू विल लुक द बेस्ट फॉर श्योर. Next, for styling tip for mom could be one of the most important is कि अपने wardrobe से जितने लूज कपड़े जो मटर्निटी वेयर, उनको हटाने का टाइम आ गया है. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहनते हैं तो ऑलरेडी आपको बहुत बैगी फील करा देते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज डोंट probably stop wearing the oversized t-shirts और लूज जो कपड़े होते हैं ना, हम लोग खरीदते हैं टिल मटर्निटी तक चल गया वो, क्योंकि वो रिक्वायर्ड था. बट अब उनको हटा दो, क्योंकि अब जो है वो आपको बैगी बनाएगा. यू लुक मोर बल्की और मोर वेटेड. सो डोंट वेयर द बैगी थिंग. नेक्स्ट स्टेप वुड बी फिटिंग. डोंट वेयर दी एकदम फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनको मत पहनो. उससे क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में फैट बहुत हो गए हैं, बल्जेस हो रहे हैं. तो जब आप बहुत टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हो, बॉडी हगिंग क्लोथ्स पहनते हो, तो वो आपके बल्जेस और दिखते हैं. तो डोंट्स में है ओवर साइज एंड लूज क्लोथ्स, एंड अगेन टाइट फिटिंग क्लोथ. ट्राई टू लुक फॉर कंफर्टेबल फिटिंग क्लोथ्स, जो आपको कंफर्टेबल भी फील करेगा और आपको बहुत लूज भी नहीं है, बहुत फिटिंग भी नहीं है. इट्स अ नॉर्मल कंफर्टेबल fitting. So you should go for the comfortable fitting rather than going for tight fitting or the loose fitting. क्योंकि मैंने भी इनिशियली कुछ टाइम ये गलती की थी कि शायद लूज मैं वापस अपने मटर्निटी वेयर पहनूंगी तो आई बी ओके, मेरे बल्जेस नहीं दिखेंगे. बट आई यूज्ड टू फील awful, और बैग भी दिखते हैं, तो इट शुड नॉट बी देयर. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि you should be doing is to discard your all nursing clothes and your nursing lingerie. Now it's time to get all the urban fancy lingerie back into wardrobe and clear all the nursing and maternity lingerie, because हो गया आपका maternity time over हो गया है. और then start buying good stuff, urban fancy lingerie for yourself, क्योंकि वो आपको कम एक कॉन्फिडेंट भी बहुत मिलता है. सेकेंड, यू विल बी इन गुड शेप. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको गुड शेप में दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन बी इन अ गुड शेप. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डू इट एज फास्ट एज यू कैन. गेट सम रियली cool lingerie. I love different good quality फैंसी थिंग्स. तो डू इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए. नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी डिस्कवर किया है, वो भी बहुत इन है, एंड दैट इज़ हाई वेस्ट डेनिम्स ट्राउज़र
इट लुक्स सुपर कूल, बहुत हॉट लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है. सो इट्स टाइम दैट आप हाई वेस्ट डेनिम ट्राउजर जो भी आप पहनते हो प्रेफर करते हो, आप उसको वार्डरोब में लेकर के आओ, बिकॉज इट रियली लुक टू हॉट. और इट्स अ बून फॉर द मदर, ऑल द मदर्स, क्योंकि आपका जो बॉडी पार्ट है ना वो काफ़ी कवर हो जाता है एंड वो बिल्कुल मतलब इट लुक रियली स्टाइलिश. तो डोंट फॉरगेट, वो काफ़ी इन है आजकल. सो वार्डरोब मस्ट होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए आपका हाई वेस्ट डेनिम्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि डोंट वेयर एनी थिंग विच इज़ क्लिंगिंग इन योर वेस्ट लाइन ना. मतलब कुछ भी जो वेस्ट लाइन में क्लिंग कर रहा है उसको मत पहनो, क्योंकि एनी वेज स्पेशली फॉर सी सेक्शन मदर्स, जो हमारा सीजेरियन इंसेक्शन होता है वो, क्योंकि आजकल बिल्कुल वेस्ट लाइन के नीचे होता है, तो अगर हम कुछ भी वैसे कपड़े, तो ऑलरेडी वो बल्जी हो जाएगा. तो क्लिंगी कपड़े नहीं पहनो जो भी आपके वेस्ट लाइन में क्लिंग हो रहा है. डोंट वेयर दोज क्लोथ्स. और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, एक्सेसरीज. आई बिलीव गुड एक्सेसरीज प्ले अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इन योर एंटायर जो प्रॉपर पर्सनैलिटी है. सो आई डिड नॉट यूज टू लाइक एक्सेसरीज बिफोर. मुझे पसंद नहीं था. यू कैन सी इवन अभी भी मुझे बहुत पसंद नहीं है. आई डोंट नो, बट आई स्टार्टेड बाइंग सम ऑफ देम, क्योंकि विद blue denim you can have a good white shirt or t-shirt and have a good accessory. It really look good, बहुत stylish लगता है. और being a new mom, it again very important. आप breast feeding के लिए भी easy हो जाती है. शर्ट buttons होते हैं और you look cool, stylish, so you can definitely try this. Get really some cool maxis. Now, maxi does not mean the maternity one. Super stylish maxis आते हैं. You can try them. You can get it from lot of online sites. Myntra has really good collection. You can try there. H&M have good collection of maxis, so you can try wearing maxi, good one. और ड्रेसेस, लूज कॉम्फी ड्रेसेस ट्राई कर सकते हो. डेनिम के डेनिम शर्ट ड्रेसेस आते हैं. आई गॉट रिसेंटली, मैंने काफ़ी डेनिम शर्ट ड्रेसेस लिए हैं. दे आर वेरी कूल, कॉम्फी एंड सुपर उबर स्टाइलिश. तो यू कैन ट्राई दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कुछ भी हो, जो भी पहना है ना, बिल्कुल ऐसे पहनो कि बस मैं ही अच्छी दिख रही हूँ. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. और अगर आपके मन में ही आ गया ना, यू आर लुकिंग सुपर गुड, सुपर कूल, सुपर बेस्ट, डन. कि चाहे कुछ भी लोग बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू लुक सुपर गुड एंड सुपर स्टाइलिश. तो कभी भी बाहर जाने का होता है. प्रीवियसली जब इवान 1 मंथ का था, मेरे को लगता है कि हम लोग काफ़ी ट्रैवल किया हमने इवान के साथ. 6 मंथ तक काफ़ी ट्रैवल किया है. उसको हम काफ़ी वीकडेज और वीकेंड्स आउटिंग में लेकर के गए. काफ़ी स्पॉट्स में लेकर के गए. तो बेस्ट जो मुझे कपड़े लगते थे, जो मैं पहन के जाती थी, डेफिनेटली ड्रेस ही मेरे को कंफर्टेबल लगता है, या तो शॉर्ट्स. You can wear really denim के short और एक cool comfy t-shirt पहन लो, have a pair of shoes and you are done. This is what I do generally when I travel और मैं कहीं जाती हूँ. और अच्छे dresses जो आपको comfortable fitting हो, wear a good sandal, good slippers, और wedges ले लो. आप अपने footwear collection भी change कर सकते हो. कुछ अच्छे wedges ले लो, shoes, different casual sneakers, shoes आते हैं. Get all those stock up. और इट्स टाइम फॉर लेडीज कि आप लोग अपना वार्डरोब चेंज करें एंड लुक सुपर गॉर्जियस, सुपर स्टाइलिश. बिकॉज एनीवेज, बीइंग अ मॉम is a very difficult task, but you still need to look super gorgeous, super stylish, and back to your shape as you used to be earlier. मैं जब सेलिब्रिटीज़ को देखती थी तो मुझे लगता था कि कैसे कर लेते हैं ना इतना मतलब इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनके प्रेगनेंसी. इवन इन द नेक्स्ट डे दे आर लाइक सो फिट, डूइंग ऑल द एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग. डेफिनेटली उनका डाइट बहुत ही डिफ़िकल्ट बहुत ही होता है. उनका जिम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके इतने लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए. तो थोड़ा उनके लिए ईजी होता है, हमारे लिए तो मुश्किल है. तो लेट्स कीप एवरीथिंग इन प्लेस. धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा. सो कीप थिंग्स
एक एक करके करो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने से प्रॉब्लम होती है, होता भी नहीं है, बिकॉज आपको पहला प्रायोरिटी आपकी बेबी है, उसको ध्यान देना है, उसको टाइम से खाना खिलाना है, उसका नापी चेंज करना है, लॉट ऑफ थिंग्स, स्लीपलेस नाइट, ये वो। डोंट फॉरगेट टू अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आई वॉज थिंकिंग टू शेयर अ वीडियो, मैं एक वीडियो सुन अपलोड करूँगी कि मटर्निटी के बाद हम बच्चे पे तो बहुत ध्यान देते थे और हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। दैट उसका बहुत रिकवर्शन है आगे जो आपको पता चलेगा। एक प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपको क्रैम्पिंग्स होती है, पैरों में दर्द होता है, बैक पेन होता है, हेयर फॉल्स, तो आफ्टर मटर्निटी इसके बहुत साइड इफेक्ट है। सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो सून जिसमें आई बी शेयरिंग अगेन सम कूल टिप्स यू गाइस, कैसे अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल पहले रखो, तभी आप अपने बेबी और अपनी फैमिली को पे ध्यान दे पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, it's done. I hope you guys liked the video and let me know in the comment box आपको कैसा लगा, क्या मेरा वीडियो यूजफुल लगा या नहीं लगा। आई होप आपको पसंद आएगा एंड लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट बॉक्स हाउ यू लाइकिंग इट। एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स शेयर करो एंड आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट जिसमें मैं आपके आंसर्स शेयर करूँगी। आई होप you guys will do it very soon and I am going to upload some really cool videos again and let me know अगर आपको कुछ questions हैं, makeup, skin, hair, pregnancy, motherhood, anything, please share and let me know। तो probably मैं एक video बहुत जल्दी बनाऊँगी उसके ऊपर भी। So thank you again, thank you so much guys for watching this video and press the like button, and those who are new to the channel, please go and subscribe and also hit the bell button so that you'll get all the regular updates on whatever videos I'm going to post. So stay safe, stay gorgeous, stay stylish, love you.